Assalamu alaikum, Nazreen. Welcome to yet another episode of Do Mastane presented by Suna Dreams Media Company Limited. Abdullah, have you noticed something? I know I haven't, and I don't want to. I will point this out to you. When I shake my head like this, you notice my head kind of just, like the hair just starts flipping. It's flipping like a springboard. Yeah, I don't understand. I feel like I'm standing on your hair and taking a dive. Yeah, it 10 would be. feet, It's like a 10 feet springboard. deep dive. It's a, just, just. Just dive. Let's dive straight into this. Let's Into our topic. I like it. There's nothing. What a great segue. What amazing segue. That was very well done. man. This was the segue or segways? It was the segwayियाँ. Ah, सेगियाँ. segwaइयाँ जैसे सवैयाँ होती है ना? सवैयाँ होती हैं. segwaइयाँ हो गई ये तो. हाँ. दूध में बनी हुई. खजूर दूध के साथ. में खजूर के साथ. आय हाय. Anyhow, our main topic, our only topic. This should be the only topic. Forget all the politics. Forget the tariffs. Forget JT. Forget DT. Nothing matters. Nothing else matters. But the Super Bowl. Super Bowl, baby. 59. Yes. 59 ही था ना? 59 था मेरा. 69 कब आएगा? मतलब 10 साल बाद कौन जीतेगा? वो इसके ऊपर हम किसी और दिन किसी और चैनल के ऊपर हम 10 साल बाद हम बात करेंगे. तफसील में मतलब इसके ऊपर I बात really करेंगे. want to talk about Super Bowl in 10 years. I'm so excited. You mean like Super Bowl 69? Yes. See. I have a feeling that अपना ये Lahore Stallions will win that. Lahore Stallions. But anyways, jokes apart, what a game. What a phenom. I thought you were going to say the F word there. Well, you did. No, You said the P word. I said the PH word. The What a PH word. effing... Phenomenal. What a PH and phenomenal game. Phenomenal. You know, Abdul, I'll be honest with I you. can't do this. Yeah. I'll be honest with you, man. My team, I don't know if you know this, or I've told you this a couple times. I'm a local guy, so I'm an AFC guy. That's the division that the American Conference. I'm a Buffalo Bills guy. I'm a Miami Dolphins guy. I'm a Pittsburgh Steelers guy. Yeah. I wanted to be a KC guy when Mahomes first, came into the league. And I was, because he was a hot shot, overly confident QB. I loved him. Him and Josh Allen of Buffalo Bills, they were going neck and neck for a couple of years. And it was fantastic to see that new rivalry between the two teams, between the Bills and the Chiefs. But then something changed, Abdullah. Something changed. There was this air of arrogance and ignorance. I want to say something about that. That came into the whole KFC orbit. Oh, KFC. Sorry. Chicken याद आ रही है इनको. Chicken मुझे भूख लग रही है. Is it KFC? No, it's KCF. KCF. It is KCF. It is KFC. Same thing. Same shit. They got fried. Wow. They got fried. They got deep fried, Oh, man. yeah, deep fried. Deep fried in the south. With some fries with some coleslaw on the side. Right there, New Orleans. How do you pronounce it? New Orleans? New Orleans, yeah. New Orleans. New Orleans. In the deep south is where they got fried. Before we talk about them getting fried, which they did. No, but Abdul, let me just finish Yeah, my yeah, point. you finish your I'm point. just saying that I was so happy to see what happened to them Sunday night. I mean, before halftime, they were down by almost 30. I think they were down by 30. 24, 24 or 24 or 34 nothing. Zip. Yeah. And I was watching. I wasn't actually home. I was out somewhere, and I was going to record the damn game. But then it was on the screen, and so I was really upset. So I started watching it, and I'm watching Mahomes just run around like a chicken with his head cut off. He couldn't find anyone open. He couldn't play the running game. He couldn't play nothing. He looked awful, and it was beautiful. And then they never panned that camera up to where Taylor Swift was sitting. That's exactly what I was going to say. There was the headlines. Apparently, Patrick Mahomes got fried. The whole team did. बहुत से लोग कह रहे थे कि उस पे बेचारे पे जादू हुआ था. मतलब Patrick Mahomes उसकी बेचारे की अपना क्या नाम है उसका Patrick उसकी जो माँ वो माशाल्लाह से उसने अच्छा नहीं खेला उस दिन. But here's my point. The headlines the next day in most at least Canadian newspapers was that, or even across the American papers media, was that DT Donald Trump was cheered, Taylor Swift was booed, and Kendrick Lamar wowed. Wow. Nobody talked about the game because Patrick बेचारी की तो माशाल्लाह से हैट्रिक हो गई.
मतलब hat-trick नहीं हुई. Hat-trick नहीं हुई. The only thing I wanted, man, I don't look. I personally don't like Kansas either. When they won 2 years ago, I was rooting for. Was it Philly? I think it was Philly. That the no, year. no, that was a couple of years That ago. was San Francisco. But I think it was Who was the San Niners Francisco, last year, right? Yeah, last year was San Francisco. But I don't like the team. I just wanted someone to make history that day. It could have been, a three-peat or a No, I wouldn't have mind. Honestly, Abdullah, I wouldn't have minded if it was three-peat. Yeah. Because then, you're comparing it to, everyone's going to start comparing him to Tom Brady and saying, oh, was this the next GOAT? And this thing about the GOAT, my brother posted something on WhatsApp, and he says, the word GOAT is being thrown around a lot nowadays. With Mahomes, well, if he wins a couple of more, maybe. But it's too soon to say, man. अभी इतनी जल्दी अभी वो टॉम ब्रेडी ने पता नहीं कितने इसके सुपर बोल दाढ़ी के बाल निकले हैं नहीं. हाँ, साला डायपर में उछाला वो चलता रहता है पैदल. टॉम से मुकाबला करने टॉम से वो अब जाके वो मुकाबला कर रहा है. Brady single-handedly won the cup or the bowl. The Super Bowl. For what, 4 times? I think he's got 6 rings. 6 rings. आप सोचें 6 rings, and he is by far. In fact, if there's a goat of goats in all sports, then he has to be that. Yeah. Either him or Djokovic, but that's a different Djokovic, argument. You know what? At the Australian Open, he beat that Spanish kid, man. Oh, I like it. Spanish kid, he's a warrior. लेकिन यार उसने उसका खेल जो है उसके ऊपर उसने उसको हरा दिया. In his way, in his style, he beat him. Yeah. Anyway, that's a different thing. But and another thing, Abdullah, this is a little bit off topic. We're talking about goats. My brother put something out there, and it says goat. Goat is actually a symbol of the devil. Yeah, it is. Because the devil is the greatest of all time. Damn. He is the greatest of all time. अब मैं इसको कैसे लूँ, आप लोग कैसे इस स्टेटमेंट को लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैं अब तो स्पीचलेस हूँ मैं. Greatest creation of all time, right? We're not comparing him to anything. He created everything, but out of his creations, who has had the wow, okay, I'm listening. The guts to face up to and challenge him. That's all I'm saying. That's all I'm saying. It's all recorded in the books. This topic, our topic today has turned to a very interesting dialogue where Abdullah is mentioning that name somebody since the dawn of time in any entity, creation, a jinn or a human, that has the dramatic impact and success that Iblis has so far. But we have to say, I mean, the book, it's all in the books. Lekin, just to cover my own. I'm a little bit worried about it. Yeah, I have to say, disclaimer, that Satan's authority and his power is still in the hands of the greatest Lord of all, the only one, the omnipotent. And without his authority, or like Joey would say, impotent. The devil would be impotent without his power and. But Abdullah, I remember on a serious note, like Mazak se alawa, me and you, we've had so many discussions about that. Remember, where we talked about how many universes there are, and is Allah subhanahu wa ta'ala, is he the manager of one of the universes, and there's a whole bunch of, and then we started talking about, you started building a case for Iblis, saying that defending certain things that he was doing. अब अगर हम इंसान को देखें, insan's nature, its very fitrat is to destroy itself. He's self-destructive. Yeah. And all Iblis was doing was pointing that out to Allah subhanahu wa ta'ala, that look, man, I mean, I know you created him, but look at what its code is. Bro had a point. Destroy itself. Bro had a point. Still does. Really, eh? Still does. Abdullah, seriously? I mean, look at us, man. Look at us. Look at us human beings. Look at yourselves. देखिए अपने आप को आईने में. क्या है आपकी औकात? वैसे अगर देखा जाए अब्दुल्ला, करतूत, अगर मैं 1 मिनट के लिए इब्लीस बन जाऊं, मैं क्या कहूंगा लोगों से? मैं यही कहूंगा ना, I've had my nose in this since the whole thing began. And who's winning? Let me tell you something about who's winning right now. Who's got all of the corruption, all the insanity, all the deplorable acts that go on in this world? Who's got that in his mitti? Me. Sorry, that's Satan talking.
So anyways, that हालांकि आपको you don't have to say that अगर मैं बन जाऊं हाँ 1 मिनट के लिए. नहीं मैं तो ऐसे मतलब I was just adding the entertainment factor But to it. मतलब, anyways, we got a little off a little topic. bit off We topic. apologize. Actually, we got really got We were off talking topic. about goats. Sorry about that, everyone. Tom Brady is the goat of goats, and Yeah. and maybe Satan is the goat of goats of goats Of goats. सारे बकरों का वो बकरियों का बकरा है वो एक shepherd बन गया एक shepherd. बकरियों का बकरा है बकरियों का बकरा. But yeah, we gotta wrap this up. Just one more minute on the Lamar? halftime show because people love to hear about the halftime show. This was the worst ever halftime show. Abdullah, our producer Eamon was like, "Are you guys out of your freaking minds?" No, but the saving grace of this halftime show was Kendrick Lamar. Wow. उसने ड्रेक के को जो चैलेंज किया था 4 साल पहले नहीं यार मैं नहीं उसने उसकी मतलब मैं भी देख रहा था मैं तो देख नहीं पा रहा था यार. No, he basically if Patrick Mahomes single-handedly lost the match for the Chiefs, Kendrick Lamar single-handedly carried the halftime show. Yeah, but carried what halftime? Because Taylor Swift had destroyed it, annihilated it. Annihilated. Annihilated. Hellacious कर दिया उसने. I think Lamar did too. I'm sorry, man. I could not get into this halftime. There are many different halftimes in the past in the Super Bowls that I said, you know what, they're not bad. The Michael Jackson one was one that stood out for me. The Britney Spears one was another one for the wardrobe malfunction. Was that hers? I can't remember whose it was. But that was the highlight of that one. But you know, at least you had a. But this, are you kidding me? And then you know what? If you want to start talking about Lamar and then we start talking about Drake, we might, you know, we'll be here all night. We'll be here all night. But they don't deserve so much attention anyway. So on that note, we're gonna move on to the next segment. It's Valentine's Day soon, so enjoy the next segment. It's based on a romantic movie. Yeah. और आखिर में जब हम शो पे आएंगे to wrap up, we'll talk about Valentine's. थोड़ा सा आपको हम background देंगे. And we'll get some views. अभी बताएंगे, हम आपको बताएंगे. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे. आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स. फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक वही कड़क जैसी अच्छी. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय. हमारा सीजन ओपनर था 2024 का for Desi Bikers of Canada. Chai Social sponsor. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai. Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Thank you Everybody so loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. प्यार, प्यार करने से नहीं होता, मतलब हमारे बस में नहीं होता. प्यार का क्या है, प्यार हो जाता है. और जब किसी को प्यार होता है तो कहीं ना कहीं, चाहे वो लड़का हो या लड़की,
वो अंदर ही अंदर या कहीं उनके दिल में एक चीज होती है कि क्या ये पसंद मेरी अपनी पसंद मेरे परिवार की भी पसंद होगी, और ये प्रेम कहानी इतनी खुशी में बदल जाती है जब वो परिवार भी उसे खुशी खुशी अपना ले। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक प्रेम कहानी में, कि जब एक प्रेम कहानी एक दूसरे से ज्यादा अपने परिवार को इम्पोर्टेंस दे, अपने परिवार को अपने से आगे रखे, अपनी प्रेम कहानी से आगे रखे, तो वो चीज एक प्रेम कहानी को दूसरे दर्जे पे, दूसरे लेवल पे ले जाती है। आपका इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि हमारे फिल्मों में या जो पुरानी भी प्यार भरी कहानियां हैं, कथाएं हैं, कविताएं हैं, उसमें यह है कि हमेशा एक वो रिबेलियन दिखाया जाता है कि वो परिवार से लड़ रहे हैं, सोसाइटी से लड़ रहे हैं, दुनिया के खिलाफ जा रहे हैं। पिछले हफ्ते जो 2-3 हफ्ते पहले हमने QSQT की थी वो उसी पे मबनी थी जी। लेकिन ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपने कहा कि अगर परिवार का आशीर्वाद हो, उनकी ब्लेसिंग्स हो, उनकी दुआएं हो, तो प्यार का जो लेवल है वो किसी और ही उस पे पहुंच जाता है। मतलब वो जो खुशी है उसका तो बयान करना ही, मतलब उस खुशी का कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर आपका प्यार आपका परिवार कबूल करे, आपका परिवार उसे पसंद करे। हाँ। तो नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड के सेगमेंट में लाइट कैमरा क्लासिक्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम इसी लव स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी आइकॉनिक मूवी बन गई। बेशक कोई आप गेस कर सकते हैं उस मूवी के? फिर से आज हम वो कैरेक्टर्स बनकर आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। आपका ये गेटअप देख के सब समझ गए होंगे कि ये कौन। आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो इस बॉलीवुड की सबसे बड़ी आइकॉनिक मूवी का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लेकिन वैसे ये मैं कहूंगा कि आज ये इस फिल्म का हमारा इस हफ्ते चुनाव करना बड़ा टाइमली है, क्योंकि ये वैलेंटाइंस वीक है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है। और मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड में आज तक जितनी बहुत सी रोमांटिक फिल्में बनी है, बल्कि 80% फिल्में रोमांस की होती हैं, हाँ जी। लेकिन ये जो है इट वाज माइल्स अवे, माइल्स अपार्ट फ्रॉम अदर लव स्टोरीज। और इस शायद उसकी वजह यही थी जो आपने कहा कि इसमें एक रिबेलियन नहीं दिखाया, ये दिखाया कि हम अपने प्यार को पे इतना एतमाद है कि हम अपने घर वालों को भी राजी कर लेंगे। इतना आपको आपके प्यार पे विश्वास है, आपके पार्टनर पे विश्वास है, जैसा कि इस मूवी में बताया भी गया है कि मुझ पे भरोसा है खुद से ज्यादा। तो बस फिर डोली उठने की देर है। तो राज और सिमरन, जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स राज और सिमरन इस मूवी में बहुत ही बखूबी निभाया है हमारे किंग ऑफ रोमांस, एवर चार्मिंग शाहरुख खान, हमारे राज, जो कि आज हम अब्दुल्ला जी बहुत अच्छे से आज राज बन के आए हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी ये बहुत अच्छी राज की मिमिक्री भी करते हैं। अरे नहीं, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं चाहूंगी ये थोड़ा सा आज अगर हमें शो पे थोड़ा टाइम मिला तो मैं चाहूंगी कि ये आपके लिए कुछ थोड़ा सा करे। और मैं भी कोशिश जरा संभाल के। नहीं, देखा कितना अच्छा किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1995 में ये मूवी आई जी। आदित्य चोपड़ा जी का डायरेक्शन, बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन। जिस तरह से एक लव स्टोरी को एक परिवार की वैल्यूज के साथ उन्होंने शो किया, उसका तो मतलब मैं शब्दों में बयां करना। ये मूवी मेरे दिल के इतने करीब है कि मैं कभी भी इस मूवी को देख सकती हूँ। जब तक और मूवीज DDLJ के बाद मैंने नहीं देखी थी, तब तक ये मेरी सबसे उम्दा मूवीज में से एक थी, जिसको मैं कभी भी, मैं उदास हूँ, मैं DDLJ का कोई गाना सुन लूंगी, मैं कोई एक सीन देख लूंगी, कोई उस मूवी को रिवाइव कर लूंगी। सो इट्स ऑलवेज गिव मी अ वेरी गुड फीलिंग कि कल को अगर मुझे प्यार हुआ तो मैं भी राज की तरह, राज और सिमरन की तरह अपने माँ बाप की मंजूरी का या उनकी पसंद का बहुत ख्याल रखूंगी। कि कल को प्यार हुआ या नहीं, अभी तक आपको प्यार नहीं, हुआ मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब मैं बड़ी हुई और मैंने DDLJ देखी। तो इस मूवी ने मुझे काफी मूव किया और मुझे बताया कि परिवार कितना इम्पोर्टेंट होता है। परिवार को खुश ना रखे आप खुद कभी खुश नहीं रह सकते, चाहे कितना प्यार करते हैं। इस मूवी में भी उन्होंने हमें बताया है कि परिवार से भाग के हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे। नहीं, मेरा भी ज़्यादा तजुर्बा इस फिल्म को लेकर यही है कि मैं उस वक्त जब ये आई थी तो मैं लगभग 20 साल का था, अल्हड़ नौजवानी का वो तारी था। और जब ये फिल्म मैंने देखी है तो जो असर इस पे हुआ था, मैं कई दिन तक तो वो इंग्लिश में कहते हैं ना, आई वाज इन अ डेज, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी फिल्म बना कैसे ली गई। क्योंकि लव स्टोरीज तो हम बचपन से देख रहे थे, और वही जिसमें बाग़ियाना और लड़ाइयाँ और परिवार में झगड़े और भाग जाना, लेकिन ये तो अलग ही, बिल्कुल अलग ही पहलू इन्होंने पेश किया।
और फिर हम बात करेंगे आई एम श्योर आइकॉनिक सीन्स की और गानों की। जरूर जरूर आने वाले, अभी हम कुछ लम्हों में यही बातें करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं राज, किस तरह का कैरेक्टर था। एक चार्मिंग सा, एक मस्तीखोर, हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेने वाला लड़का। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप सिमरन का कैरेक्टर देखें, बहुत ही सीधी सादी, इमोशनल, सपने देखने वाली लड़की। और किस तरह से डायरेक्टर ने हमें दिखाया कि यूरोप की स्ट्रीट्स, लंदन की सड़कें और फिर स्विट्जरलैंड से होते हुए कहाँ पंजाब के खेतों तक उनके प्यार का सफर। पूरी दुनिया घुमाए, पूरी दुनिया घूमकर पंजाब में आकर जिस तरह से उनकी लव स्टोरी को हमें एंड पे दिखाया कि किस तरह से उसके पिता मानते हैं। और वो आइकॉनिक सीन मैं कभी भूल नहीं सकती। नहीं, उस आइकॉनिक सीन की बात हो जाए, वो उस सीन, वैसे तो 2-3 सीन बहुत जबरदस्त, बहुत ही हाँ। और मैं समझता हूँ कि जो इंडिया में पोर्शन हुआ है रिकॉर्ड पंजाब का जो दिखाया है, उसमें सिमरन और राज के इंटरेक्शन, वो छतों पे मिलना, प्यार उनकी वो हवेली, द वे लाइक द लोकेशन, सरसों के खेत, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। मुझसे कभी बचपन में लोग पूछते थे कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, मैं हमेशा बोलती थी तुझे देखा तो ये जाना था। मैं कभी नहीं जज कर पाई, वो मुझसे पूछते थे आपको ये गाना इतना क्यों पसंद है, मैं कभी रीजन ही नहीं जज कर पाई कि उस गाने में ऐसा क्या है। उसका म्यूजिक, उसकी वर्ड्स, उसका लोकेशन, जिस तरह से वो फिल्माया गया है, सारी। तो आज भी मतलब आप मानोगे वो गाना देखकर या वो मूवी देखकर मुझे आज भी गूज़बम्प्स आते हैं। तो कितने हद तक मतलब कहाँ उसने मुझे हिट किया है उस मूवी ने। सो दिस वाज रियली वेरी नाइस जॉब। की जहाँ तक बात है, जाहिर है पूरी फिल्म जबरदस्त है शुरू से लेकर आखिर तक, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि इंडिया में जो खास तौर पे जो आखिरी 15 मिनट है फिल्म के, एक तो वो सीन जब वो शाहरुख खान जो राज है सिमरन से कहते हैं कि नहीं बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी ठीक कहते हैं, वो जो शाहरुख खान की डिलीवरी थी, जो एक्टिंग थी, एक्सप्रेशंस थे, वाकई वो पत्थर दिल भी रो देता। मतलब मैं भी उस वक्त 19-20 साल का लड़का था, मेरे आंखों में भी आंसू पहली बार आ गए थे कोई रोमांटिक फिल्म या ऐसा लम्हा देख के। और फिर उसके बाद वो जो ट्रेन वाला सीन तो पूरी दुनिया में मशहूर। आपको नहीं, मुझे लगता है आप वो सीन भूल रहे हैं जो आप मुझे हमेशा करके दिखाते हैं। हम जब भी डीडीएलजे के बारे में हमने काफी बार बात की है, तो एक चीज है जो आप मुझे बोल के दिखाते हैं, मैं नहीं आऊंगा। तो दैट वाज लाइक फर्स्ट सीन जो उस मूवी में, मतलब काफी आधे पौने घंटे की मूवी यूरलिंगा टूर निकल जाता है, तो जब सिमरन आपको बोलती है राज को कि तुमने मुझे अपनी शादी का कार्ड नहीं भेजा, आप एड्रेस दे, मैं आपको अपनी शादी का कार्ड भेजूंगा, तो तुम आओगे ना? मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। तुमने मुझे अपना एड्रेस दिया ही नहीं, मैं तुम्हें अपना शादी का कार्ड भेजूंगी, तुम आओगे ना? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तो जिस कॉन्फिडेंस से या जिस तरह से उसने अपने प्यार का इजहार किया, आई लव यू नहीं बोला, पर क्या बोला, मैं नहीं आऊंगा। सो दैट वाज द मोमेंट सिमरन रियलाइज्ड दैट समथिंग इज देयर बिटवीन राज एंड सिमरन। सो उसके बाद हमारा एक बहुत ही प्यारा वो गाना आता है, न जाने मेरे न जाने मेरे तो हो गया है तुझको तो प्यार सजना। मतलब वो गाना कि वो उसे दिख रही है, वो उसे दिख रहा है, और दोनों को एक मोमेंट पर रियलाइज हो रहा है जब आप लोग अलग हो रहे थे। इतने दिन यूरोप में साथ रहे, तब भी नहीं एहसास हुआ कि यस समथिंग इज देयर। तो जब आप जुदा होते हैं तो देखिए जुदाई एहसास दिलाती है कि आपकी मोहब्बत क्या है, आपका प्यार क्या है। तो इसी बारे में मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगी कि मोहब्बत उसे नहीं कहते जिसके बिना दिल ना लगे। मोहब्बत उसे नहीं कहते कि जिससे आपका दिल लगे, मोहब्बत उसे कहते हैं जिसके बिना आपका दिल ना लगे। अरे वाह, क्या तो जब वो जुदा हुए तो उसी तरह से उन्हें रियलाइज हुआ कि यस वो मोहब्बत थी। और आइकॉनिक सीन्स की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो जो आखिरी सीन था, वो जो ट्रेन वाला सीन, जो आपका जा सिमरन जा, मतलब उससे पहले एक मैं सीन की बात नहीं करूंगा, एक डायलॉग जो है इस फिल्म में जो शायद बहुत से लोग नोट ना करते हो, लेकिन उस वक्त भी जब मैं छोटा लड़का था तब भी मुझे बहुत टच किया था, और अब क्योंकि मैं एक बाप हूँ बच्चों का, तो एक सीन में जब अमरीश पुरी अनुपम खेर को सुना रहा होता है और कि तुम्हारा बेटा आ रहा है, तो वो कहता है कि ध्यान से वो मेरा गुरूर है। ये इतना सा डायलॉग है, लेकिन इतना गहरा डायलॉग है कि अगर आज मैं बोलता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज हम अपने बच्चों के लिए ये सब फील करते हैं, आज हम माँ बाप बन गए हैं, कल हमारा दौर था, आज हमारे बच्चों का है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है एक फादर के लिए अपने बच्चों के लिए ये बोलना कि मेरे बेटे के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे, वो मेरा गुरूर है। और राज जैसा बेटा होना सच में गुरूर की बात है। जिस तरह का कैरेक्टर हमें दिखाया है, आई मीन एनी गर्ल कैन फॉल फॉर राज मैन। तो तभी वो कैरेक्टर राज और सिमरन
इतने आइकॉनिक बन गए हैं। हर कोई लव स्टोरी में वो, हर सिमरन अपने राज को ढूंढ रही है, हर राज अपनी सिमरन को ढूंढ रहा है। जब ये मूवी आई थी तो आई थिंक आज तक ये फिल्म सभी के दिलों पे राज कर रही है, सभी के दिलों पे। फिल्म राज इसी ने नाम रखा था शायद। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस मूवी के बाद ये नाम उनके लिए एकदम एप्ट हो गया। वो आज हम सब दिलों पे राज कर रहे हैं। द रूल, ही इज रूलिंग ऑन एवरीबॉडी। सीनियोरिटा, मैं इनको सीनियोरिटा कह रहा हूँ कि आज ये उसी गेटअप में है, और वो राज जो इनको सीनियोरिटा कहता था शुरू में सिमरन को। तो वक्त क्योंकि कम है, हम कुछ फन फैक्ट्स बता दीजिए, क्योंकि मुझे ये आपका सेगमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली हम कुछ फन फैक्ट्स के बारे में जरूर बात करेंगे। फन फैक्ट मैं भी आपको बताऊंगा आखिर में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने कभी नोट किया है कि शाहरुख खान के 2 दोस्त थे जो यूरोलिन ट्रिप पे उनके साथ थे, वो कौन थे? हाँ, एक मोटा सा था और एक तो वो था अपना करण जौहर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना। एक करण जौहर और दूसरे कैरेक्टर का नाम था अर्जुन सबलोग। तो आने वाले टाइम में वो दोनों बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर्स बने। करण जौहर को हम सब जानते हैं, अर्जुन सबलोग ने भी 1-2 मूवीज बनाई है। वन ऑफ द मूवीज ना तुम जानो ना हम, जो कि ऋतिक रोशन और ईशा देओल पे फिल्माई गई थी। तो काफी अच्छी मूवीज उन्होंने भी की हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि शाहरुख खान की, आई मीन आपकी जो ये लेदर जैकेट थी, जो आज आपने आइकॉनिक लेदर जैकेट पहनी है, तो ये जैकेट एक हार्ले डेविडसन स्टोर से बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया से उदय चोपड़ा जी $400 में खरीद के लाए। आप सोच सकते हैं वो जैसे ही लाए और यश चोपड़ा जी ने वो पर्टिकुलर जैकेट अपने मूवी में यूज कर ली। आई कैन इमेजिन मेरी जैकेट अगर कोई मुझसे लेता, No, I would have never given that कि ये जैकेट मैं लाई हूँ, ये जैकेट पहले मैं पहनूंगी। बट थैंक यू सो मच उदय चोपड़ा, आप ये जैकेट लाए और हमें राज की एक बहुत ही बढ़िया आइकॉनिक लुक मिली। So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और फिर मैं एक आज जबरदस्त बम फोड़ने वाला हूँ आप सबके लिए। आप कोई बम फोड़ने वाले हैं? तो एक चीज मैं बताती हूँ, एक और इसी मूवी में एक और आइकॉनिक मूवी का प्रॉमिस हो गया था टू करण जौहर। हमारे शाहरुख खान और काजोल ने कुछ होता है इसी सेट पर प्रॉमिस की थी करण जौहर को कि दैट वी आर गोइंग टू मेक कुछ होता है विद करण जौहर। सो करण जौहर वाज एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एज वेल, बट उन्होंने इस मूवी में एक्ट भी किया। बहुत छोटा सा रोल था, बट एनीबॉडी कुड रिकॉग्नाइज कि वो करण जौहर। वैसे इस बात पर तो मुझे ये कि हम अगले कुछ हफ्तों में शायद कुछ हम बिल्कुल करने वाले हैं, क्योंकि अब मुझे सुन के कुछ हो रहा है। अच्छा, एक फन फैक्ट मैं आपको भी क्या बल्कि सबको बता दूं कि इस फिल्म का 25-30 साल हो गए निकले हुए, अब सीक्वल बन रहा है उसका। क्या बात कर रहे हो? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसका सीक्वल बनना भी जरूरी था। तो आप ये सोच सकती हैं कि उसका नाम क्या रखा जा रहा है? नहीं, घर वाले देखते रह जाएंगे। तो ये सीक्वल आप बना रहे हैं तो आप प्लीज मुझे कास्ट कर सकते हैं, अगर आप ये सीक्वल बना रहे हैं तो प्लीज 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 आप प्लीज। असल में वो गाना था ना, दिल पुराना गाना था, ले जाएंगे। हाँ, ये मूवी एक चोर मचाए शोर से शशि कपूर की मूवी थी, वहां से ये टाइटल लिया गया था। दिस इज ऑल्सो अ फन फैक्ट। एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, कुलजीत का जो कैरेक्टर था बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर था। मुझे ऐसे लगा कि जो ये जिन्होंने ये किरदार निभाया है उनके अलावा क्या और कोई कुलजीत हो सकता था। बट इससे पहले ये कुलजीत का रोल ऑफर हुआ था मिलिंद गुनाजी को। अच्छा। तो मिलिंद गुनाजी, जो कि आपको याद होगा फरेब मूवी, उन्होंने काफी सारी और मूवीज की हैं, बट उनका जो दाढ़ी वाला लुक था वो यश चोपड़ा जी को पसंद नहीं था, तो उन्होंने उनसे दाढ़ी हटाने को बोला। सो दाढ़ी नहीं हटाई और एक आइकॉनिक मूवी का पार्ट होने से वो रह गए। फिर ये रोल गया अरमान कोहली को। अगर आपको याद हो, बड़ा ही खूबसूरत दिखने वाले थे अरमान कोहली, पर उन्होंने ये मूवी ठुकराई बिकॉज ही डजंट वांट टू कास्ट हिमसेल्फ एज अ नेगेटिव कैरेक्टर, बिकॉज वो उस टाइम पे हीरो थे, थोड़ी बहुत कुछ मूवीज भी की हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि एक नेगेटिव कैरेक्टर करे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी थी कि, और शाहरुख खान से पहले आपको क्या लगता है आदित्य चोपड़ा के मन में क्या था वैसे तो मुझे जब ये मूवी, लेकिन मैं उस वक्त छोटा था। ओ या, आपको कॉल किया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये एक लास्ट फन फैक्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आदित्य चोपड़ा के दिमाग में जब ये मूवी आई, जब उन्होंने इसे कंसेप्चुअलाइज किया, स्टोरी लिखी, ही ऑलवेज वांटेड टू कास्ट टॉम क्रूज। टॉम क्रूज, बिकॉज़ इट्स लाइक आपका फॉरेन इंडो अमेरिकन अफेयर चाहते थे वो चाहते थे मैं टॉम क्रूज को कास्ट करूं। और लेकिन जब यश चोपड़ा जी के साथ बात हुई, यश चोपड़ा जी ने बोला जिस तरह की स्टोरी है, जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं, इट कैन नॉट बी अ फॉरेन स्टार। तो आप कोई, तो फिर ये मूवी हमारे एवर चार्मिंग शाहरुख खान जी के बाद गई और रेस्ट इज हिस्ट्री। हमें और कुछ इसके बारे में बताने की कोई बात नहीं है। टॉम क्रूज इसमें आ जाते तो शाहरुख खान शायद मिशन इम्पॉसिबल कर रहे हो शायद। इसी पे हमारा ये सेगमेंट हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहूंगी कि एक
परफेक्ट अगर लव स्टोरी आपको देखने का कभी मन करे तो गो वॉच DDLJ। एक बार फिर से इन मोमेंट्स को रिलिव कीजिए। बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, गाने सुनिए, उस मोमेंट को ताज़ा की अपने जहन में ताज़ा कीजिए और देखिए ज़रा अपने आसपास देखिए, क्या आपके लिए कोई राज या कोई सिमरन इंतज़ार कर रही है। और हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसे लगा और अगले एपिसोड में आप किस मूवी के बारे में हमसे जानना चाहेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और we'll be back after a short टेक केयर, शब खैर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे शो चाय पे चर्चा पे। और आज मेरे साथ है मेरे बहुत ही अजीज मित्र एजाज। कैसे हैं? एजाज। आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है भाई साहब। आपके बोलने में गलती है भाई साहब। चलो चलो, आज मेरे साथ है एजाज। और एजाज क्या करना है, क्या क्या प्लान है क्या यार इस वीकेंड का? वीकेंड सोच रहा हूँ नई मूवी आई है यार, वो हिमेश रेशमिया की कोई मूवी आई है कोई क्या हो गया, लगता है वो बहुत ही अरे मेरे भाई देख कर आए, चलते हैं, शो अच्छा लग रहा है। ओ भाई मैं वो मूवी देख चुका हूँ भाई, मैं देख चुका अरे यार ये मैं लॉर्ड हिमेश की वो मूवी देख चुका हूँ। अरे भाई यार आप अकेले चले गए मूवी देख के, मेरा बड़ा हो रहा था, मैंने कहा बड़ा जबरदस्त ट्रेलर आया है, उसका डायलॉग मैं सुना है ऐसी ट्रेलर खतरनाक चीजें अकेला देखना पसंद करता हूँ और मैं सबको बोलूंगा देखो वो मूवी इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि आपको अच्छी लगने लगेगी। अरे यार मैं तो प्लान बना रहा था वीकेंड पे जाने का, देखते हैं बिल्कुल उसको। बिल्कुल, मेरे को लगता है सबको देखनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा आपको उसका रिव्यू दे देता हूँ। आज बात छिड़ी है तो उस मूवी की शुरुआत होती है, वो बताया जाता है हिमेश, लॉर्ड हिमेश द्वारा ये मूवी 80s की मूवी है, इसमें VFX और बजट इशू है, ठीक है, 80s के जमाने में होता था, एक ट्रिब्यूट मूवी बना दी। ओके, अब आप मानिए कि उस ट्रिब्यूट मूवी के अंदर स्टार्टिंग में लॉर्ड हिमेश क्या बोलते हैं कि लॉजिक ऑप्शनल है। अच्छा, लॉजिक ऑप्शनल दे दी उन्होंने। लॉजिक ऑप्शनल, लॉजिक ऑप्शनल मतलब पहले ही बोल दिया रजनीकांत भाई, रजनीकांत मूवीज केले में से गोली निकल रही है तो अब उस मूवी को देखने के लिए अगर आपको जाना है, एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि आप नशा कौन सा करके जाओ। अच्छा, भारी से भारी नशा आपको लगेगा ये मूवी देखने के लिए, वरना आप 10 मिनट में थिएटर से बाहर जाने का कष्ट उठा सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब वो मूवी शुरू होती है, तो अब बैड एस रवि कुमार जो है मूवी, वो लॉर्ड हिमेश, पहले मैं लॉर्ड हिमेश के बारे में आपको बता देता हूँ। लॉर्ड हिमेश हमारे जमाने के 2006-2007 से लेकर अब तक बैक टू बैक भाई हिट्स गाने देने की मशीन। लॉर्ड हिमेश जो है ना, वो पाकिस्तान में हमारा पहला जो कंटेंट, जैसे आप कहते हैं, ऑडियंस समझ गई होगी, हमारे बचपन का हमारा पहला कंटेंट जो है वो हिमेश भाई ने हमें दिया था लेकिन हिमेश, आपको मैं बताना चाहूंगा एक फन फैक्ट, हिमेश रेशमिया दुनिया के सेकंड मोस्ट सेलिंग आर्टिस्ट हैं। अच्छा, हाँ जी, जो उनकी एल्बम आई थी तेरा सुरूर, वो जो आई थी, वो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट सेलिंग एल्बम है। अरे जबरदस्त यार, ये अच्छा, 55 मिलियन कॉपीज बिकी हैं आफ्टर माइकल जैक्सन विद 70 मिलियन। यार ये तो इट्स लाइक अ बिग अचीवमेंट, ये तो मतलब पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे। लेकिन अब हिमेश जी बड़े टाइम से कोशिश कर रहे थे कि भाई बॉलीवुड में कब्जा किया जाए, लॉर्ड हिमेश है, क्या शाहरुख क्या सलमान। ओह, लॉर्ड अच्छा, हिमेश ने बोला पिक्चर मैं बना के दिखाऊंगा। पिक्चर मैं बना के दिखाऊंगा। अब आप मानिए कि उस पिक्चर की स्टार्ट होती है, उस स्टार्ट मूवी में और पुलिस ऑफिसर होते हैं जो हमारे लॉर्ड हिमेश होते हैं, जो रवि कुमार जी हैं। ओके, अब उनका इंट्रोडक्शन किस तरीके से होता है, दो ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर आपस में बात कर रहे हैं, बोले हमें एक बैड एस कॉप चाहिए। ओके, अब वो बैड एस कॉप जब बोलते हैं तो मूवी के अंदर अच्छा एक रवि कुमार का ट्रेलर आता है, फिल्म के अंदर ट्रेलर आ रहा है, इंसेप्शन लेवल मैक्स, अरे प्रो मैक्स, ये ट्रेलर लेवल मैक्स हो गया ये। हाँ, उसमें इंसेप्शन ऑफ ट्रेलर जी रवि कुमार जी आते हैं और वो आते हैं और आरियों से लोगों को काट देते हैं। अरे भाई हैवी कर बीच में से फाड़ देते मतलब। अरे हैवी कर दिया, हैवी कर दिया। और आप मानिए इस मूवी के अंदर कॉन्सर्ट है जहाँ पे सनी लियोन और अपने लॉर्ड हिमेश। क्या कहा आपने? फीमेल लीड में सनी लियोन है? हाँ जी बिल्कुल। तो सनी लियोन क्यों है? शायद काम नहीं मिल रहा होगा। अच्छा, लेकिन इस मूवी में सबने ये प्रूव करके दिखाया कि हम कितनी खराब एक्टिंग कर सकते हैं। कितनी खराब? अरे मतलब कि हमें लॉर्ड हिमेश से और रवि कुमार जी से पीछे दिखना है। अच्छा, पीछे दिखना है, ये उनका गोल था। मतलब इतना बैड नहीं जाना है। हाँ, इस मूवी के अंदर 15 हिमेश रेशमिया के गाने हैं। अरे भाई साहब, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। और आप मानिए कि ये मूवी में डायलॉग था कि डायलॉग में मूवी थी। हर लाइन पे हिमेश भाई या फिर हमारे रवि कुमार भैया
सिर्फ डायलॉग में बात वो बड़ा फेमस डायलॉग था, आप बता रहे थे मुझे, वो झोंपड़े वाला कुछ। हाँ, क्या वो उसमें एक डायलॉग मैं आपको बताना चाहूंगा। अर्ज किया है कि इरशाद बिल्कुल अर्ज किया है कि जिस तूफान में तुम्हारे झोपड़े उड़ जाया करते हैं, ओहो उस तूफान में रवि कुमार अपने एक अच्छे सुखाया करते अरे अरे भाई बहुत हैवी कर दिया आपने। तुम्हारे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देते। अरे भाई ये सही मूड से लिखे हुए डायलॉग है ये। एकदम गोटेड डायलॉग। आप ये मूवी जरूर देखें और आपको इस मूवी के गाने एकदम हिट करेंगे। आपको वो नॉस्टैल्जिया हो जाएगा, जो पुराने हिमेश भाई हैं हमारे, एकदम वही फील आपको देंगे, वही तेरा 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 सुरूर वाले। और मतलब मैं हंस हंस के गिर गया। इस मूवी में एक जेन्युइन सीन है जिसमें हिमेश भाई जाते हैं अपने रवि कुमार भैया चोरी करने के लिए। वो मुंह पे ऐसे मोजा पहनते हैं। अरे मुंह पे मोजा, उसमें 3 छेद होते हैं जिसमें से उनकी दाढ़ी भी दिख रही होती है। एक छेद में एक आंख का छेद इधर, एक का छेद इधर, ठीक है। अब वो जाते हैं भैया, गार्ड खड़े, गार्ड के बीच में से ऐसे को क्या बोलते हैं, मेंढक की तरह कूदते हुए। अच्छा। और वो जमीन से रेंगते हुए ऋतिक रोशन को फेल कर दिया है धूम 2 के अंदर। इस लेवल की चोरी दिखाई है। और मतलब आप मानिए वहां गोलियां चल रही हैं और हिमेश भाई का डायलॉग खत्म नहीं हो रहा। वहां पे वो डायलॉग पे डायलॉग मारो और एक गोली उनको आके छू नहीं रही, क्योंकि 80s में मूवीज में हीरो को कुछ नहीं। वो मुझे एक पुरानी मूवी याद आ गई, पाकिस्तान की मूवी थी शान की, जिसमें पूरे गांव पे हमला हो गया है और शान भाई नमाज पढ़ रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है कि शान भाई ऐसे अल्लाह अकबर करते हैं और जाते हैं सजदे में, गोली ऊपर से गुजर जाती है। शान भाई सलाम फेरते हैं, इधर गोली यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद शान भाई दुआ कर रहे हैं और गोली आगे रुकी हुई है, वेट कर रही है, ठीक है। तो शान भाई ने ऐसे दुआ खत्म की है और उसके बाद वो गोली वहां ऐसे यूं पकड़ के देख रहे हैं, गोली इज वेटिंग। मेरा ख्याल है ये वो नेक्स्ट लेवल कंटेंट डिस्ट्रैक्ट करा दिया मुझे। हाँ। लॉर्ड इमेज पे अभी एक कंट्रोवर्सी इंडिया में बड़ी चल रही है, इंडियाज गॉट लेटेंट को लेके। अगर जो लोग YouTube चलाते हैं या फिर जो भी आज की जनरेशन का कंटेंट क्रिएशन देखते हैं, उनको पता होगा कि इंडियाज गॉट लेटेंट क्या है। हाँ, कुछ ऐसा यार आता है, कुछ उल्टा सीधा शो। हाँ, उल्टा सीधा तो नहीं बोलूंगा, मैं पर्सनली देखता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। उसमें एक हमारे पॉडकास्टर भाई हैं जो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हाँ, वो कुछ चल रहा है आजकल, कुछ कंट्रोवर्सी। मैं फॉलो करता हूँ एक्चुअली उस बंदे को, उसके काफी अच्छे पॉडकास्ट हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट पास कर दी है, ओके, जिसकी वजह से हमारे पूरे इंडिया के अंदर कंट्रोवर्सी हो गई है। हर न्यूज चैनल के पास यही टॉपिक है, हर पॉलिटिशियन के पास यही टॉपिक है। देश में जैसा और कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा लक्ष्य, मैं वो शो फॉलो नहीं करता हूँ, तो इसलिए मुझे ज्यादा अपडेट नहीं है। बस इतना पता लगा था कि हाँ कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। अब उन्होंने जो बोला है वो हम यहाँ पे नहीं चला सकते ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने बहुत भद्दी बात बोली है। लेकिन मैं ये मानता हूँ पर्सनली, जो मेरा पर्सनल टेक है, जो भी उन्होंने रिलीज किया वो अपने पर्सनल चैनल पे रिलीज किया, उसको देखने के लिए यूट्यूब के ऊपर एक मेंबरशिप लगती है। अच्छा। अब वो मेंबरशिप जो होती है वो लोग पैसे देके खरीदते हैं, वो सब कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं 18 साल से ऊपर, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ गलत उन्होंने बोला, जो कि बिल्कुल बोला कहीं ना कहीं एक पॉइंट तक, लेकिन क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है देश का? यार मेरा ये ख्याल है कि आप एक कचरा, हमारे कराची में ना खाली प्लॉट होता है ना, उधर कचरा फेंक देते हैं सारे लोग, ठीक है। तो अगर आप वहाँ एक बंदे ने कचरा फेंका है, आप उसकी थैली को आप कह रहे हो कि यार इस बंदे ने, इसकी जो थैली है ना उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, आप कचरा कुंडी में खड़े हुए हो, ठीक है। अब आप ऐसे शो पे हो जहाँ पे सारी वाहियात और गुफ्तगू और बहुत ही फुहिश बातें हैं, और आप उसमें कह रहे हो कि यार एक बंदे ने कमेंट पास कर दिया है, और आप सारे एडल्ट्स हैं यार। अगर आपको इफ यू डू नॉट वांट इट, जैसा आपने बताया दर्श कि उस पे सारे मेंबरशिप है, कंसल्टिंग आपके जो है वो एडल्ट्स हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर इफ यू डोंट वांट इट, बहुत सारा कंटेंट है, आप ना देखें। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात की मुझे लगता है कि यहाँ पे न्यूज चैनल वालों को भी मिल गया कि भाई कंटेंट लेना है हम लोगों को। उनको मालूम था कि इंडिया में एक वायरल शो है यूट्यूब के ऊपर, और जब आप ज्यादा तेज ऊपर जाते हो तो आपको गिराने के लिए 1000 लोग नीचे बैठे हैं। एग्जैक्टली यही हुआ। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट थोड़ा सा ज्यादा था, शायद उसको काटा जा सकता था या नहीं भी काटा जा सकता था, बट ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। देश में बहुत मुद्दे हैं, देश में दिल्ली में चुनाव हुए, अभी उनको नहीं पता कि कौन वहाँ का क्या चीफ मिनिस्टर बनेगा, या फिर अभी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो रेप्स हो या फिर मर्डर्स हो। देश में इसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन सब लोग अपनी टीआरपी बटोरने में लगे। आपके क्रिकेटर ने भी तो वो एक ने सेंचुरी मारी है ना बड़े अरसे बाद, क्या नाम है वो, रोहित शर्मा। यार वो उनकी सेंचुरी, रोहित भाई आपसे हमें फुल हमदर्दी है, आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो जारी रखो, हम बिल्कुल देख रहे हैं आपकी सेंचुरी को फॉलो कर रहे हैं। और मैं ये इस बात पे लास्ट इसको मेरे को लगता है खत्म करना चाहिए कि जो भी बना रहा है कंटेंट, एक सेल्फ गवर्निंग प्रोसेस होना चाहिए जहाँ पे आप खुद मॉडरेट करें आप क्या बना रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। इस पे सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि दैट इज अ एप्लीकेबल थिंग।
बट यहाँ तक कि कंटेंट क्रिएटर जिसने वो बात बोली उसने अपोलोजाइज किया। हाँ मैं उसका देखा, उसका ही अपोलोजाइज और उसके लिए, लेकिन अभी वही है कि सबको टीआरपी बटोरनी, सारा गेम टीआरपी का है। हम भी यहाँ इसीलिए बैठे हैं। नहीं, हम सारे एडल्ट लोग हैं। इफ यू डू नॉट लाइक सम कंटेंट यू जस्ट चेंज द चैनल, यू सिंपली यू लाइक, उस बारे में चर्चा करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर और जिन्होंने नहीं देखा वो ना ही देखें, लेकिन जिन्होंने देख लिया है वो इसको आया गया करें। मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि इसी के साथ आज का हमें प्रोग्राम बंद करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्ते, खुदा हाफिज। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स। शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी। फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे। इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा। लेट्स टॉक, मज़ाहिया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे। लाइट्स कैमरा लाफ, देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर। बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे, और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में, जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो, जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाजरीन, welcome back to our show दो मस्ताने. Here we are again with our co-hosts. Actually, we're the co-hosts and she's the real host. Abdullah, the funny thing is, we missed her the last couple of weeks. We did. She was out somewhere having a lot of fun, enjoying herself. We're in the middle of this goddamn weather, and she's out there on the beach somewhere. I was in the Bahamas, and I was on a dental mission, and I was working, and Whatever. it was incredible. But we are going to discuss that next week. We're going to discuss that next week, and the reason being that this week, being Valentine's week, we are going to talk about Valentine's. मैं थोड़ी history देने वाला था, but I don't want to bore you guys. What I really want to know, and apparently it's a big secret, मुझे आज पता चला कि मर्द Valentine's को कुछ और समझते हैं, and a woman's opinion of Valentine's is something else. So please, so elaborate. This is what men usually think. It's chocolates, flowers, and dinner, right? And one more thing after that, but we can't say that. And yeah, let's not speak about that. But it's what is that? I'll explain.
You guys can discuss that afterwards. The boys can talk about whatever they want to talk about afterwards. But I don't even know what we're talking about. So men think that, and I honestly do think that. yes, but normally, like what I would say from a woman's perspective, it's not just about the moment; it's about the day. So what we actually want, it's the entire day to be spent on us. So maybe booking a resort or a hotel or a spa experience together. What we want to do is have quality time with our better half. And the roses and the chocolates and maybe the dinner would be like a moment in the day. But normally what we would want, what I personally would want is to spend quality time and an entire day. Celebrating the actual day itself. I'm already getting chest pains. No, I'm bedazzled or bamboozled, dumbfounded. man. But you guys should know this stuff. Like, man, you know, look, I'm turning 50 this year, inshallah. Wow. मतलब मैं बचपन से Valentine's मनाता आ रहा हूँ. From the age of. बुड्ढे हो गए हो? I must have gone on like at least 30 to 35 Valentine's dates with my wife, obviously. Bull. लेकिन मैं वाकई ये समझता था कि it's all about, you know, the dinner, the chocolates, the gifts. That's the... what I thought. That's what I thought. Some women are okay with that. I don't know what Farah's talking about, But majority of women would rather have quality time over flowers, I think. Yes. So it would be about the entire day being pampered for the day, or just spending quality going on a beach it's February, so that's not really a thing. Yeah, unless you're in the Bahamas, like some people were. But maybe like a spa day, or you know, going to Niagara Falls and getting a hotel for the day, and just or going, having a movie day and just chilling with each other. Now, what the hell is your husband? What's the husband supposed to do during a spa, or get a couples massage? Watch TV. Watch TV, right? Get facials together. There's so many things. Facials? That guys do. Yeah. Guys get facials? Farah मान लिया मैंने, ठीक है. I admit. Go swimming for the day. But wouldn't women want this at every occasion then? Seriously, their birthday. Man. That's what I'm talking about. That's their what anniversary, the first time we met, Mother's the first Day. time we went. So that's what I was talking to Haroon about earlier. That whenever I had a special day, whether it's my birthday, especially Mother's Day, I like to go on because Mother's Day comes in May. Yeah. So my thing about Mother's Day was we are going to go and have a picnic. So we would get our basket ready and we would get our chadars ready and we'd go and we literally spend the day in a park and just have quality time with each other. And that was my perfect Mother's Day. It was better than getting any gift, any flowers. It was just spending the day with my family. So if your beautiful children just said to you, Mom, I've just booked an amazing restaurant. We're going to go tonight. We're going to have an amazing meal at this restaurant for Mother's Day. Would you be upset? I wouldn't be too happy about it. Wow. Not upset, but yeah. It wouldn't I'd be like, be all right, we're going out to eat. experience. We eat every single day. मैं तो बड़ा परेशान हो गया मैं तो. High maintenance है यार ये फरा जो है बड़ी high maintenance. This is actually the most lowest maintenance ever. Like we don't care about gifts, we don't care about like the flowers. It's about spending quality time together. यही तो मसला इतने मैंने 50 साल जो gift पे पैसे खर्च कर दिया है. Could have Seriously done that on something. Bankrupt हो गए हो तुम ये कर करके. I mean, we're not saying that we don't want the gifts. We want the gifts. Right? But what you're saying really is it's about the overall experience, the moments. Yeah, the day itself should be a special day. Not just the material aspect that we men think it's a chocolate. Chocolate दे दो उसको खुश हो जाएगी. Balloon दे दो, balloon दे दो, balloon. अभी क्या वो कोई doggy catty वो cats है वो क्या वो are they pets? Come on, man. This time, you know what? On Friday you should surprise your wife. You should literally spend the day with her. Or if you're working, she'll think it's gonna be somebody Friday. else. I'm actually working and I'm working downtown that day. And it's apparently Shaban. I'm going to be fasting that day. Well, the next day then, on Saturday. Yeah, I think I'll do it on the following day. Yeah. That'll be a bigger surprise. I think Abdullah's just not going to show up. It doesn't have to be on the day as long as you're celebrating the day as like that special day, right? So what Farah and Abdullah are trying to tell me is that a woman really appreciates the care and the thought that goes into. Whereas what we basically think as a consensus, we believe that, okay, it's Valentine's Day, so my wife or my girlfriend wants chocolates. Do you actually really think that though, for real? And wants a nice dinner. Do you really? Yeah, I mean, we actually He's been thinking that for 30 years. I'll say this on air that I honestly thought it was about the gifts. Not from a material point of view, but just the experience of receiving something. You're right, man, because our women are very materialistic anyway. They love all. लेकिन अब आज पता चलेगा really it's the experience and it's the thought that counts. हालांकि मुझे समझ नहीं आता इस thought को count करना सिखाया किसने? बहरहाल. Yeah. This is one more thing that I always get my kids and I used to get my husband to do was always write me a letter. Oh. I want a handwritten letter. Oh नहीं ये नहीं होगा. मेरी handwriting बहुत खराब है.
It's worse than a doctor. So on please. my birthdays, my kids would be like, "What, Mom? What do you want?" I'm like, honestly, I just want you to write me a letter, and I have every single letter saved. But if I do that, man, with my chicken scratch, she'll sue me. Oh no, you can write a nice letter. Telling her how much you Would she appreciate really her, how much sue you you, love man? her. Honestly, Abdullah. Yeah. She would be How many years disappointed. have you been married? 20 years. 20 years. So you can't write a letter about the 20 years that you spent with your I've wife? stopped writing stuff. I'll all email right, it to her. email I'll it. email Email her. it to her. Oh, Just text her. Oh, that's horrible. Just WhatsApp her. पे भेज दूंगा. No. चलें बत्ती लाल हो गई है, which means we have to get off Batti here. lal. So Is there a red light my district? fellow gentlemen, please remember to forget the gifts this year. No, don't forget the gifts. Don't say that. Just spend the day with them. Just The hold day. hands all day. The gifts and the whole day. Yeah, the day, as long as nothing's coming out of your wallet. I love this idea that far as make her feel special throughout the entire day. Just That's keep- what she wants. keep talking to her for the whole day. Tell her how much you love her. You just don't spend any money on her. चलें इसी बात पर आपसे अलविदा लेंगे अलविदा लेंगे और आप सबको वैलेंटाइंस बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि ये बहुत स्पेशल दिन है. Abdullah, I'm even more confused about women now, man. You stay confused. That's You stay the extra confused. thing that you're That always was gonna be the whole confused. idea to make you even more confused. I don't think you're ever going to be okay when it comes to women. हम मिलेंगे don't आपसे understand. अगले I don't understand हफ्ते women. इसी जगह इसी वक्त, all three of us together, inshallah. You both Because make we're not these- letting her go to Bahamas. No. We need अपना her ख्याल here. रखिएगा. I'll tell you guys about Bahamas next week. Next week.